تو زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، تقریباً ہر ایمان والا جانتا ہے کہ فرض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے تعلق سے قرآن میں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے تو اس کا بہت زیادہ سخت عذاب بھی ہے، گناہ بھی ہے اور سخت عذاب ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے تعلق سے قرآن کی آیت ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ جو لوگ ادا نہ کرتے ہیں ان کے تعلق سے قرآن میں فرمایا کہ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن ہے نہیں مال، وہ لوگ جو اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو جو ان کا مال ہے اس مال کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اس مال سے ان کے پیشانیوں کو، ان کے پہلو کو اور ان کو پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ جو مال ہے اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور جب خوب گرم ہو جائے گا تو اسی مال سے ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کے پیٹھ کو داغ دیا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے کیا دنیا میں اکٹھا کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تم مزہ چکھو اس کا جو تم نے دنیا میں اکٹھا کیا تھا، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہ کیا تھا اس کی سزا چکھو۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر اس کے مال کو جہنم میں آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جسے مال دیا اور پھر اس آدمی نے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو اس مال کو اللہ تعالی ایک زہریلا ناگ کی شکل میں بنا دے گا، وہ مال ایک زہریلا ناگ کی شکل میں تبدیل ہو جائے گا، اور اتنا زیادہ زہر ہوگا کہ اس کی وجہ سے اس کے سر کا بال اڑا ہوا ہوگا سانپ کا، زہر کی وجہ سے، اور اس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور پھر وہ سانپ ہے نہیں زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیا کرتے تھے ان کی گردن میں لپٹ جائے گا اور گلے کا توق بن جائے گا، اور ان کے یہ دونوں جو جبڑے ہیں، یہ دونوں جبڑے، ان دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا، جکڑ لے گا اور اسے کاٹے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں جو تم نے دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا تھا۔ اس طریقے سے اسے سانپ ڈسے گا۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر یہ عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور خاص طور پر اللہ نے جنہیں مال دیا ہے انہیں زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ یہ مالداروں پر فرض ہے، غریب لوگ ان پر نہیں۔ زکوٰۃ یہ عبادت ہے لیکن ایسی عبادت ہے جو مالداروں پر فرض ہے، غریبوں پر نہیں۔ مالدار کا مطلب کیا ہے؟ مالدار کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس 10 لاکھ روپے ہو، 20 لاکھ روپے ہو، نہیں۔ مالدار کا مطلب شریعت میں کیا ہے کہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو اپنے ہندوستانی وزن کے اعتبار سے جن کے پاس 7.5 تولہ سونا، جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے نہیں، یا 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے اس کے بقدر ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے تو وہ صاحب نصاب اور مالدار کہلائے گا۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا۔ کتنا؟ 7.5 تولہ سونا۔ اور یہ 1 تولہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 1 تولہ جو ہوتا ہے مارکیٹ میں 10 گرام کا ہوتا ہے، 10 گرام کا 1 تولہ کہلاتا ہے، اسی کو 1 بھری کہتے ہیں۔ یہ ہوا مارکیٹ میں، لیکن شریعت کے جو تولہ ہوتا ہے 11.6 گرام کا۔
शरीयत में जो तोला है 11.6 ग्राम का, इस एतबार से 7.5 तोला का वजन जो होगा शरीयत के एतबार से 87 ग्राम हो, 87 87 ग्राम सोना हुआ। तो अगर किसी के पास सिर्फ सोना ही सोना है, अगर किसी के पास सिर्फ सोना ही सोना है और चांदी नहीं है और कैश भी नहीं है, खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर किसी के पास सिर्फ सोना ही सोना है और चांदी बिल्कुल नहीं, कैश भी नहीं, बिजनेस का सामान भी नहीं है, सिर्फ सोना ही सोना है, तो अब अगर उनके पास 87 ग्राम सोना है या उससे ज्यादा है तो ज़कात फर्ज है, और अगर 87 ग्राम से कम है तो ज़कात फर्ज नहीं है। लेकिन हुक्म कब है? जब सिर्फ सोना ही सोना हो, चांदी वगैरह और कैश न हो। और चांदी पर आइए कि अगर किसी के पास सिर्फ चांदी ही चांदी है, सोना नहीं है, कैश भी नहीं है, बिजनेस का सामान भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में चांदी का निसाब 52.5 तोला और 1 तोला शरीयत वाला 11.6 ग्राम का होता है, तो आपको 11.6 को मल्टीप्लाई और ज़रब कर देना है 11.6 से, इस तरीके से 612 ग्राम हुआ। तो चांदी का वजन हुआ 612 ग्राम चांदी। अब अगर किसी के पास 612 ग्राम चांदी है या उससे ज्यादा है तो ज़कात फर्ज है, इससे कम है तो उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि किसी के पास सिर्फ सोना हो और चांदी न हो और कैश न हो, ऐसा नहीं होता है, और किसी के पास सिर्फ चांदी ही हो, सोना नहीं हो, कैश न हो, ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर यह होता है कि औरतों के पास सोना और चांदी दोनों होता है, और 1000-2000 रुपए भी कम से कम होते हैं, कैश भी होता है, और ये कैश जो है चांदी के हुक्म में है, ये कैश रुपया पैसा चांदी के हुक्म है, तो सोना चांदी दोनों होता है। अगर किसी मर्द के पास अगर सोना भी हो तो कैश भी होता है। तो खुलासा ये निकला कि सिर्फ सोना या सिर्फ चांदी किसी के पास नहीं होता, अगर हो तो ये हुक्म ये जो हमने बयान किया, लेकिन सोना चांदी दोनों हो और थोड़ा थोड़ा हो, यानी सोना जो है 7.5 तोला से कम है, चांदी जो है 52.5 तोला से कम है, सोना 87 ग्राम से कम, चांदी 612 ग्राम उससे कम, दोनों थोड़ा थोड़ा है। तो अब क्या होगा? तो अब ऐसी सूरत में उलमा ने लिखा है कि चांदी की कीमत का एतबार होगा। किसकी कीमत का एतबार होगा? चांदी की कीमत का एतबार होगा। और आजकल 612 ग्राम चांदी की कीमत तकरीबन 1,70,75,000 रुपया मार्केट में बनता है, जो मैंने मालूम किया और मल्टीप्लाई किया। आप भी निकाल सकते हैं कि 1 ग्राम चांदी की कीमत क्या है, उसको आप 612 ग्राम से मल्टीप्लाई कर लें, है नहीं? तो 612 ग्राम चांदी की कीमत आजकल मार्केट में है 1,70,75,000। तो म्यार रुपया नहीं है, म्यार है 52.5 तोला, 612 ग्राम चांदी। अगर चांदी की कीमत अभी काफी तेजी से बढ़ रही है और अगर बढ़ता चला गया तो 2 लाख 3 लाख पे ज़कात फर्ज होगा, उससे कम पे फर्ज नहीं होगा। और अगर चांदी की कीमत डाउन हो गया, जैसे कि पहले कम था, अगर कम हो गया तो 1 लाख पे ही ज़कात फर्ज हो जाएगा। आज से 10 साल पहले 40-42 हजार पे ज़कात फर्ज हो जाया करता था। बहरहाल आजकल मौजूदा जमाने में 612 ग्राम की कीमत जो है तकरीबन 1,70,72,000 रुपये है। तो अब अगर किसी के पास 612 ग्राम चांदी की कीमत है नहीं, 1,70,72,000 है, तो अगर किसी औरत के पास या मर्द के पास सोना चांदी दोनों है, या मर्द के पास सोना है और कैश है, तो ऐसी सूरत में 612 ग्राम चांदी की कीमत का एतबार होगा। अगर 612 ग्राम चांदी की जो कीमत होती है उस कीमत के बकदर का अगर जेवर मौजूद है तो उस पर ज़कात फर्ज होगा। और ज़कात का ताल्लुक सिर्फ 4 किस्म के माल से है, अरे सिर्फ 4 किस्म के माल से है, 5वें किस्म पर ज़कात नहीं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, और नंबर 3 है सोना चांदी माले तिजारत बिजनेस का सामान, और चौथी चीज है कैश रुपया पैसा। ये जो 4 चीज हैं, इन 4 चीजों पर ज़कात निकालना है। ज़कात कितना निकालना है? 2.5% निकालना है। ये मालूम है आप हजरात को, 2.5% निकालना है। और सिर्फ इन 4 चीजों पर ज़कात है, बाकी 5वीं चीज पर ज़कात नहीं। मुमकिन है कि आप सवाल कर दें कि गल्ले की जो ज़कात निकालते हैं,
تو हम लोग उसे ज़कात कहते हैं, शरीयत में भी उसको निकालना है, लेकिन शरीयत ने उसका नाम ज़कात नहीं रखा है, शरीयत ने उसका नाम उश्र रखा है। उश्र का मतलब होता है 10वां हिस्सा, यानी 10 किलो में 1 किलो निकालना है। गल्ला की ज़कात 10 किलो में 1 किलो निकालना है, तो 10 किलो में 1 किलो जब निकालना है तो ये क्या हो गया, 10% हो गया। ज़कात निकलता है 2.5%, गल्ले में जो निकालने का हुक्म है 10 किलो में 1 किलो, तो ये 10% हो गया। और अगर पानी पटाने में खर्च हुआ है तो ऐसी सूरत में हुक्म है कि 10 किलो में आधा किलो, 20 किलो में 1 किलो। तो जब 20 किलो में 1 किलो हो गया है, नहीं 20 किलो में 1 किलो हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में ये कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तो गल्ले की ज़कात या तो 5% है या 10% है। तो हम लोग ज़कात कहते हैं, लेकिन कुरान हदीस में इसका नाम ज़कात नहीं है, उश्र बयान किया गया है नहीं। तो ये ज़कात के मसाइल जानना जरूरी है। और शादी के बाद तमाम औरतों के पास कुछ न कुछ जेवर जेवरात होता है, माँ बाप शादी के मौका से देते हैं। और कोई गरीब आदमी भी है तो मेरी समझ, मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम एक भरी 1 तोला तो जरूर देता है। और आजकल मार्केट में 1 तोला 1,40,000 1,50,000 का है। और अगर किसी के पास सोना चांदी दोनों मिला करके 1,70,000 का हो तो उसमें ज़कात फर्ज है। तो औरतें चाहे उनके पास पैसा ना हो, जेवर की वजह से वो मालदार हो जाती हैं, लिहाजा उनको हर साल ज़कात भी निकालना है और हर साल कुर्बानी भी करनी है। बहुत सी औरतों के पास जेवर है, लेकिन मसाइल न जानने की वजह से या सुस्ती की वजह से उसकी ज़कात अदा नहीं करती हैं, गुनाहगार होती हैं। जिनके औरतों के पास जेवर है नहीं, औरत तो शरीयत की रोशनी में औरत शादी के बाद मालदार ही मालदार, पैसा न भी रहे मालदार है जेवर की वजह से। और एक मर्द 20,000 25,000 30,000 का महीना कमा के भी फकीर हो सकता है, उसमें ज़कात नहीं होगा। 30,000 का महीना कमाता है, रेंट से रहता है, 5,000 मकान मालिक को दे दिया, बच्चों को फीस दे दिया, माँ बाप को दिया, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा में खर्च पूरा खत्म हो गया, नहीं बचा। अब जो बचा ही नहीं तो ज़कात नहीं है। बहरहाल ज़कात ये फर्ज है, जहां अदा करने पर बहुत ज्यादा सवाब है, वही अदा न करने पर गुनाह भी है। अब आखिर में एतकाफ के मुतालिक भी चंद मिनट बयान कर देता हूं। एतकाफ किसे कहते हैं? एतकाफ नाम है एतकाफ की नीयत से, एतकाफ कहते हैं एतकाफ की नीयत से ऐसे मस्जिद में ठहरना जिसमें 5 वक्त जमात से नमाज अदा की जाती हो, तो एतकाफ की नीयत से ठहरना उसको एतकाफ कहते हैं। और एतकाफ का सवाब बहुत ज्यादा है, एतकाफ का सवाब बहुत ज्यादा है। और एतकाफ करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई आदमी किला में बंद हो जाए तो दुश्मन के हमला से महफूज हो जाता है, ऐसे ही अगर कोई आदमी एतकाफ में बैठता है तो गुनाहों से महफूज हो जाता है। और एतकाफ करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे कोई अमीर कबीर आदमी के दरवाजा पर जाए, खटखटाए और कुछ अपनी जरूरत के लिए मांगे, वो गाया नहीं मिलेगा, अब वो दरवाजा पर बैठ गया, मालिक दे दो, मालिक दे दीजिए। अब इतना वो अड़ जाता है कि आदमी मजबूर होकर के मालिक मकान दे ही देता है और कहता है जब तक दीजिएगा नहीं हम जाएंगे नहीं। लोग ना चाहते हुए जान छुड़ाने के लिए दे देते हैं। तो एतकाफ करने वाला अल्लाह के घर मस्जिद में जाकर के पड़ जाता है और अपनी जबान से और अपने दिल से कहता है अल्लाह आप हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए, जब तक आप हमारे गुनाहों को नहीं बख्शेंगे मैं यहाँ से टलने वाला नहीं हूँ। तो ये एतकाफ के बेशुमार फजाइल हैं। जब आदमी एतकाफ की हालत में होता है तो खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना सब ये इबादत में शुमार होता है, सब इबादत में शुमार होता है। और एतकाफ के बारे में अल्लामा शारानी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल गुम्मा में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी एतकाफ करता है उसको 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है, 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। और एक हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 1 दिन का एतकाफ करता है तो उसके लिए 3 खंदक यानी 3 गढ़ा, 3 खंदक आड़ कर दी जाती है, आड़ बना दी जाती है उस आदमी के दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक को आड़ बना दिया जाता है। खंदक के माना गढ़ा, ये खंदक और गढ़ा कैसा है? पूरा आसमान और जमीन के बराबर है, ये आसमान जमीन के बराबर 3 गढ़ा खोद दिया जाता है, गोया कि वो आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा।
3 खंदक को खोद दिया जाता है। ये सिर्फ एक दिन एतकाफ करने का सवाब है, और जब रमजान में 10 दिन का एतकाफ करेगा तो उसका क्या सवाब होगा। एतकाफ जो है ये बड़ी इबादत है। एतकाफ की 3 किस्में, एतकाफ की 3 किस्में हैं। नंबर 1 वाजिब, नंबर 2 सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, और नंबर 3 नफल। ये 3 किस्में। पहली किस्म वाजिब, एतकाफ की पहली किस्म वाजिब। वाजिब ये है कि अगर कोई शख्स ये इस तरीके से कहे क्या अल्लाह मेरा फलाना काम हो जाएगा तो मैं आपके लिए 2 दिन का या 3 दिन का एतकाफ करूंगा, तो अब ये एतकाफ वाजिब हो गया। ये मन्नत का एतकाफ है, उसका पूरा करना जरूरी है। या इस तरीके से नहीं कहा, सिर्फ यही कह दिया लिल्लाहि अलैहि अन आतकिफ यौमैन, अल्लाह के लिए मुझ पर वाजिब है, अल्लाह के लिए मुझ पर लाजिम है कि मैं 2 दिन का या 4 दिन का एतकाफ। ये जुमला कह लिया उसने जबान से, दिल में नियत किया, जबान से कह लिया, तो अब ये एतकाफ उसके ऊपर लाजिम हो गया। ये एतकाफ वाजिब है, इसका पूरा करना जरूरी है। और एतकाफ की दूसरी किस्म है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया यानी सुन्नत मुअक्कदा है और अलल किफाया है, यानी जैसे कि जनाज की नमाज फर्ज किफाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया, किफाया का मतलब यह है कि मोहल्ले में से एक आदमी भी मस्जिद में जाके बैठ जाएगा तो सारे मोहल्ले की तरफ से अदा हो जाएगा। जो एतकाफ में नहीं बैठे उनको सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक आदमी के बैठने की वजह से सारे लोग गुनाह से बच जाएंगे। और अगर एक आदमी भी एतकाफ में नहीं बैठा तो सारा मोहल्ला वाला गुनाहगार होगा। ये है अलल किफाया का मतलब। तो ये रमजान में जो एतकाफ करते हैं 10 दिनों का, 20 रमजान से लेकर 10 दिनों का एतकाफ करते हैं आखिर अशरा का, ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से इसका एतकाफ किया है, यह एतकाफ करना चाहिए। ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। और तीसरी किस्म नफली एतकाफ। नफली एतकाफ की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत कोई 10 दिन का कर ले, 10 महीने का कर ले, 10 साल का कर ले, पूरी जिंदगी का कर ले, है ना एतकाफ। इसको कोई हद मुकर्रर नहीं ज्यादा की, लेकिन कम से कम कितना कर सकते हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कम से कम 1 दिन 1 रात यानी 24 घंटे का, 1 दिन 1 रात का होगा। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नफली एतकाफ जो है 1 मिनट और 2 मिनट के भी हो सकता है। फतवा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल पर है कि नफली एतकाफ 2 मिनट 4 मिनट का भी हो सकता है। लिहाजा हम मर्द हजरात जब मस्जिद जाते हैं और नमाज के लिए दाखिल होते हैं तो हमारे बुजुर्गान दीन का मामूल है, अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेरा भी अपना जाती मामूल है कि जैसे ही मस्जिद में दाखिल होता हूँ तो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ता हूँ, और दाखिल होने की दुआ पढ़ने के बाद फौरन कहता हूँ नवैतुल एतकाफ कि मैं एतकाफ की नीयत से हूँ। अब जब तक मैं मस्जिद में रहूंगा मुझे एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। तो अल्लाह ताला तो बहाने से बंदों को क्या है देता रहता है। तो ये एतकाफ की तीसरी किस्म है। और एतकाफ में बहुत ज्यादा सवाब है। हमने बतलाया कि एक हदीस में है कि 2 हज और 2 उम्र का सवाब है, इसे करना चाहिए। और इस मामले में हमारी औरतें बड़ी पीछे हैं, जबकि औरतों के लिए एतकाफ करना बहुत आसान है। औरत जो एतकाफ करेगी तो मस्जिद में जाकर नहीं एतकाफ करेगी। औरत ने अपने घर में नमाज के लिए अगर कोई जगह मुतय्यन कर रखा है, किसी कमरे को, किसी जगह को कि वही नमाज पढ़ेंगे, वही उसके एतकाफ की जगह है। और अगर कोई जगह पहले से मुतय्यन है, कभी इस कमरे में पढ़ लिया, कभी उस रूम में पढ़ लिया, कहीं पढ़ लिया, तो एक घर को, एक रूम को मखसूस कर लें एतकाफ के लिए, और उस रूम से बाहर न निकले, सिवाय पेशाब पाखाना जो जरूरत है उससे निकले, उसके अलावा न निकले। घर में रहे तो उनको तो घर में रहना ही है, बस एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाना है। घर की अगर वो सास अम्मा है तो उनके लिए तो रोजा रखना और भी आसान है। घर में बेटी है, बहू है, उनको बुलाया, ऑर्डर कर दिया, ये सब्जी बना लो, वो सब्जी बना लो, झाड़ू लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, यानी सारी बात कर सकती है। ऐसा नहीं कि बात नहीं कर सकती हैं, दुनिया की सारी बातें कर सकती हैं। अपनी बेटियों को बता सकती हैं कि आज ये बना लो, आज ये पका लो, ऐसा कर लो, सारी काम कर सकती हैं और इबादत भी कर सकती हैं, बस एक रूम से नहीं निकले। तो ये समझिए कितना आसान है। घर में तो रहती ही हैं, तो औरतों के लिए तो एतकाफ करना बहुत आसान है, लेकिन आमतौर पर औरतें एतकाफ नहीं करती हैं। औरतों को चाहिए कि एतकाफ करें, बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और तमाम हजरात को कहने और सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।